Yes, everyone. Dhairya and Soumya, you have a textbook or PDF of this textbook? Dhairya, Soumya. मैम चैप्टर 1 की पीडीएफ है मेरे पास. Soumya, I can't hear you, beta. Can't hear you. मैम मेरे पास टेक्स्ट बुक है. टेक्स्ट बुक Okay, and Dhairya, what about you? मैम मेरे पास पीडीएफ पड़ी है चैप्टर 1 की. PDF है. Okay. So we'll continue with this chapter. Before that, we'll recall what we have done in last lecture. Dhairya, आपका वीडियो ऑफ है बेटा? यस मैम. Wait, only this last part is left of this chapter. First, we'll complete this, then we'll recall everything of this chapter, okay? Soumya, read from here. Page number 7. How nutrients are replenished in the soil. Read करो वहाँ से. Have you seen farmers spreading manures or fertilizer in the field, or gardeners using them in lawns or in pots? Do you know what this is done? You learned that plant absorb minerals and nutrients from the soil. Absorb it is. Absorb minerals and Nutrients from the soils, so their amount in the soil keep on declining. Fertilizers and manures contain nutrients such as nitrogen, potassium, phosphorus, etc. These nutrients need to add from time to time to reach the soil. We can grow plants and keep them healthy if we can fulfill the nutrient requirement of plant. Stop. Now see, what is replenished? Suhani, what is replenished, beta? Replenish means one thing is done, repeat and repeat. Dhairya, what is replenished? Dhairya, what is replenished? रिप्लेनिश का मीनिंग है टू फिल अप अगेन. अगर कोई चीज खत्म हो गई है तो उसको फिर से फिलअप कर देना. दैट इज कॉल्ड रिप्लेनिश. ओके. See how nutrients are replenished. As I told you in last lecture that once the crops are grown and when it is harvested, तो जब वो क्रॉप्स को काटते हैं तो उसके साथ सारे न्यूट्रिएंट्स चले जाते हैं. फिर से फील्ड में मतलब सॉइल में फिर से न्यूट्रिएंट्स डालने पड़ते हैं ताकि अच्छे से फिर से क्रॉप्स ग्रो हो. इज दैट क्लियर? तो दैट इज कॉल्ड रिप्लेनिश. सिंपल, एकदम सिंपल एग्जांपल के आप रोज दूध पीते हो तो दूध में बॉर्नविटा, बूस्ट, हॉर्लिक जो भी यूज करते हो. ओके, तो अगर वो खत्म हो जाता है तो मम्मी वापस दूसरा ला देती है तो उसको आप रिफिल बोलते हो. वैसे साइंटिफिक में अगर कोई चीज फिलअप अगेन करनी है देन इट इज कॉल्ड रिप्लेनिश. दैट इज द डिफरेंस. ओके, क्लियर?
So Yes. you learned that plants absorb minerals and nutrients from the soil. We know that plants soil में से minerals और nutrients ले लेते हैं और all parts of the plant को देते हैं. Okay, so their amount of soil keep on declining. Declining means decrease होना. Soil में से nutrients कम हो जाते हैं, decrease हो जाते हैं. Fertilizer and manures contain nutrients such as fertilizer और manure जो होते हैं. Manure मतलब खातर. खातर सबको पता है ना, cow dung and all that. Organic manure और manure. हाँ मैम, वो प्लांट्स में होता है ना. हाँ, प्लांट्स में फर्टिलिटी बढ़ाता है. इसका डिटेल आपको 8th स्टैंडर्ड में आएगा, लेकिन अभी आपको मैं बता दूं कि मैन्योर को क्या है, ऑर्गेनिक है, नेचुरल सब्सटेंस है जो डेड एंड डिकेइंग ऑफ प्लांट्स और एनिमल वेस्ट में से बना होता है. उसका मैन्योर का एक एग्जांपल है काउ डंग. और मैम वो हम जो खाते हैं उसके छिलके होते हैं, उसको भी क्रश करके और अर्थवर्म के फर्टिलाइजर वो सॉइल में डिकम्पोज हो जाता है और सॉइल फर्टाइल हो जाती है. ओके, so fertilizer and manures contain nutrients such as nitrogen, potassium, phosphorus, etc. These nutrients need to be added from time to time. देखो, एक चीज खत्म हो गई तो उसको जैसे ही वो खत्म होता है उसके टाइम टू टाइम उसको ऐड कर देनी पड़े तो ही बैलेंस रहता है. ओके, we can grow plants and keep them healthy if we can fulfill the nutrient requirements of plants. Plants को जो nutrient requirement है, if we keep it proper, then only plants will grow healthy, right? Suhani, read second paragraph. Yes. Usually, crop plants absorb a lot of nitrogen and the soil becomes deficient in the nitrogen. You learn that through nitrogen gases is available in plenty in the air. Plants cannot use it in the manner they can use carbon dioxide. They need nitrogen in a soluble form. The bacterium and rhizobism can take the atmospheric nitrogen and convert it into a usable form, but rhizobinium cannot make its own food, so often lives in the roots of gram, pieces, mung, beans, and other legumes and provides them with nitrogen. In return, the plants provide food and shelter to the bacteria. They thus have a symbiotic relationship with association is of great significance for the farmer. They can reduce the use of nitrogenous fertilizer for legumes. Okay, stop. Now speak. For leguminous. Suhani, stop. First, I'll explain. Usually, crop हाँ. plants absorb a lot of nitrogen. Crop plants जो होते हैं उसमें नाइट्रोजन वो सॉइल में से लेता है. जैसे मैंने आपको बताया था कि प्लांट को नाइट्रोजन सॉइल में से राइजोबियम बैक्टीरिया देते हैं उनकी हेल्प से. Soil become deficient in nitrogen. What is the meaning of deficient? मतलब कमी, नाइट्रोजन की कमी होना. You learned that though nitrogen gas is available in plenty in air, air में बहुत है nitrogen gas, plenty in air. हाँ, available in plenty in plants directly. Air में से nitrogen plants नहीं ले सकते. Plants can't take. They only can take nitrogen from the soil. Okay. They need nitrogen in a soluble form. The bacterium called rhizobium. देखो soil में बैक्टीरिया होते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया करके बैक्टीरिया होते हैं जो प्लांट्स को नाइट्रोजन सप्लाई करते हैं सॉइल में से लेके.
So the bacterium called Rhizobium can take atmospheric nitrogen and convert it into a usable form. But Rhizobium cannot make its own food. वो खुद का खाना खुद नहीं बना सकता. So it often lives in the roots of gram, peas, moong, beans and other legumes. अभी legumes क्या मतलब क्या पता है? Sprouted. आप घर पे sprouts खाते हो? You know what is sprout? You all three of you know what is sprout? सौम्या, सुहानी and धैर्य, No. आपको पता है sprout क्या है? No. आपको नहीं पता. स्प्राउट्स मतलब जैसे घर पे मम्मी मुझे पता है। मूंग होती है, मूंग होता है, चना होता है, उसको फणगा देते हैं ना, फणगाएला कठोर, जैसे हम गुजराती में बोलते हैं. हाँ हाँ मैम, बाफेला मग है ना, वैसा ही ना. बाफेला नहीं होता. वो मम्मी को पूछ लेना, वो बताएगी. वो मग होते हैं, उसके पीछे व्हाइट व्हाइट कलर का नहीं होता. खिचड़ी. स्प्राउट्स हाँ. बोलते हैं. उसको स्प्राउट्स बोलते हैं. ओके. वेट, मेरे पास अगर कुछ पिक्चर है तो मैं आपको बताऊं. इसमें तो नहीं है. मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको ऐसा हो तो पिक्चर बताऊंगी कि स्प्राउट्स क्या होता है. डैडी, आपको समझ में आता है कि सिर्फ बैठे ही रहते हो? मैम मुझे समझ में आ रहा है. हाँ, तो स्प्राउट्स किसी को नहीं पता कि क्या है? मैम मुझे पता है, मूंग. क्या मैम मैंने तो देखा नहीं है. चने भी होते हैं. हाँ चने के पीछे भी ऐसे हो. हाँ, that are legumes. So it often lives in the roots of gram, pea, moong, beans and and other legumes and provide them. उसको नाइट्रोजन देता है. In return, plants provide food and shelter to the bacteria. मतलब देखो, राइजोबियम बैक्टीरिया प्लांट्स को नाइट्रोजन देता है और प्लांट्स राइजोबियम बैक्टीरिया को फूड और शेल्टर देता है. दोनों एक दूसरे को हेल्प करते हैं. ओके, तो इनका क्या हुआ? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हुआ. सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हेटेरोट्रॉपिक का एक टाइप है जिसमें दो पार्टनर होते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं. राइट सौम्या, व्हाट यू आर प्लेइंग विद? Sit properly. Yes, these association is of great significance for the farmers. They can reduce the nitrogenous fertilizer which leguminous plant. वो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर को कम करता है, नाइट्रोजन सॉल्युबल फॉर्म में ज्यादा करता है. फिर मोस्ट पल्सेस मतलब दाल और वो सब are obtained from leguminous plants. Leguminous मतलब जो जैसे मैंने नहीं बोला आपको, फणगाइला कठोर जो होता है वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं उसका पिक्चर दिखाऊंगी. In this chapter you learned that most of the plants are autotrophs. There, what is autotroph? There, what is autotroph? मैम जो ऑटोट्रॉफ मतलब जो प्लांट्स वो खुद खाना बनाते हैं. Okay. Only a few are parasitic or saprophytic. Soumya, what is parasitic? Parasitic means what, Soumya? मैंने करवाया ना चैप्टर. मैम मुझे पता है. Yes, Dhairya, say. मैम जो मैम वो दूसरा प्लांट उसको न्यूट्रिएंट्स देता है, उसको बोलते पैरासिटिक बोल रहे हैं. Okay. Ma'am, parasite plants are the plants that are partially and completely depend on the host. Yes. And what is saprotrophic?
Yes, Soumya, what is heterotrophic? Organism which take nutrients from dead and dedicating matter is called Decaying. saprotropic. Dead Such and decaying. organism with sapropatic mode of nutrient are called sapropatic. Yes. They derive nutrition from other organisms. All animals are categorized as heterotrophs since they depend on plants and plants के अलावा बाकी सारे जितने भी organisms हैं, including human, are heterotrophs. Clear? So from this textbook we are ending this chapter. Now सुहानी अपनी textbook निकालो आपकी टेक्स्ट बुक में क्या बाकी रहता है वो हम लोग देख ले शायद से तो सब कुछ हो गया हाँ ये मैम सब replacement सब वाला कुछ ये हो part गया। सुनो ये हाँ रिप्लेसमेंट वाला ये पार्ट रीड कर दो हाँ ओके। मैम ये हमारे में नहीं है। Replenishment of nutrients in the soil. Plants use the mineral nutrients, especially nitrogen, present in the soil for their growth. As a result, there is a deplenish of the nitrogen in the soil over a period. it is depletion Depletion of nitrogen in the soil over a period of time. Manures and fertilizers are used to replenish the nutrients in the soil. Besides nitrogen, they also contain potassium and uh, phosphorus needed by plants for healthy growth. The symbiotic association of rhizobium and leguminous plants such as pea plant is a natural way of replenishing the soil with nitrogen. So sometimes farmer grow leguminous plant alternately with other crops alternately to restore the alternately with the other crops to restore the nitrogen content of the soil. so what is depletion means reduction okay सुहानी इसमें पता चला ना आपको जो हमने उसमें पढ़ा सेम टू सेम यहीं पे है okay now I am giving you 5 minutes or 10 minutes टेक्स्ट बुक में हर एक पेज फर्स्ट से रिकॉल कर दो आपको जो नहीं समझ में आता वो मुझे पूछ लो सुहानी आप अपनी टेक्स्ट बुक में से रिकॉल करना ये वाली जो है ना एंड हाँ, सौम्या हाँ। एंड तेरे आपके पास जो है उसमें से रिकॉल करो Yes, ma'am. ओके मैम drops means यस बेटा drops means वेट कहाँ पे है मैम फर्स्ट पेज पे ऑटोट्रॉपिक्स के बाद में जो ब्रैकेट है ना उसमें है drops ड्रॉप्स मतलब नरिशमेंट नरिश करना जैसे मम्मी नहीं बोलती प्रोटीन और वो सब खा तो तुझे विटामिन और मिनरल तू हेल्दी बनेगा मैम क्लोरोप्लास्ट कैसे दिखता है? क्लोरोप्लास्ट है जो लीव्स के अंदर होता है जो क्लोरोफिल को हेल्प करता है ग्रीन कलर देने में वो एक तरह का पिगमेंट है बेटा ओके हाँ
मैम some organisms are made of only कहाँ पे cells can be seen of under or only under the microscope. मैम माइक्रोस्कोप मीन्स देखो, माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट आता है जिसके अंदर हम लोग छोटे से छोटी चीज देख सकते हैं। मैम जो साइंटिस्ट देखते हैं वो यस, साइंटिस्ट यूज करते हैं। और सेल इज द स्मॉलेस्ट माइन्यूट पार्टिकल ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, ओके मैम ये जो जाइलम एंड पोहेलियम है वो प्लांट्स के अंदर ही होता है? हाँ, प्लांट्स के अंदर ही होते हैं। मीन्स रूट में या फिर ऊपर जो प्लांट होता है उसमें? ऊपर ऊपर होते हैं। जैसे हमारी बॉडी में नहीं वेन्स होती है, वैसे ये पाइप लाइक हाँ। स्ट्रक्चर होते हैं प्लांट्स में। मैम लीफ में जो लाइंस होती है उसे क्या बोलते हैं? कहाँ पे? इसमें नहीं है। मैंने देखा ना इसमें लाइंस थी तो मैंने पूछा कि लाइंस को क्या बोलते हैं। मुझे समझ में ही नहीं आया आपका क्वेश्चन, फिर से बोलो बेटा। मैम ये लाइंस है ना, लाइंस इधर ये लाइंस है ना, उसको क्या बोलते हैं? लीव्स में वेन्स बोलते हैं उसको, VEINS। उसको ये लाइन है ना, उसको वेन्स बोलते हैं। सुहानी, आपका कुछ रह गया हो तो मुझे बता देना बेटा। वैसे तो हमने ये पूरा चैप्टर ये टेक्स्ट बुक में से कवर कर लिया है, लेकिन अगर कुछ रह जाते हैं तो मुझे बता देना बेटा। नहीं मैम, सब कुछ हो गया। हो गया ना? तेरे आप क्या कर रहे हो कब से? सीधा बैठ के रीड करो। मैम मैंने PDF देख ली। मैम ये पिक्चर प्लांट एंड सनड्यू प्लांट है ना, वो कहाँ पे देखने को मिलेंगे? जहाँ पे ये डेफिशिएंसी हो मीन्स ऐसे स्टाइल में। हाँ फॉरेस्ट में? हाँ, मैम तो ये सनड्यू प्लांट है, उसका जो जेली है ना हाँ, बाहर का जेलीमेरिक वो। स्ट्रक्चर। यस यस।
हाँ, तो उसमें अगर हम ऐसे हाथ डाले जहाँ पे तो क्या वो हमारा नाइट्रोजन की कमी हाथ होती है ना जिस सॉइल में, उस तरह के सॉइल में ये इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ज्यादा मिलेंगे आपको। मैम, तो ये प्लांट्स ग्रो भी होते हैं? यस। तो ये प्लांट्स कभी मरते नहीं? ना ऐसा नहीं, मरते तो है ही ना, व्हाई नॉट, दे आर डिस्ट्रॉयड एंड देन रीग्रो, न्यू प्लांट इज ग्रोन। मैम, रीड कर लिया। तो सुहानी आप अपनी है ना एक्सरसाइज करो, लेट्स रिमेम्बर कर दो पहला, पहले दोनों दो लेट्स रिमेम्बर है ना वो कर दो। ओके मैम, पर इसमें तो एक ही है। अच्छा, तो एक करो, मेरे पास जो बुक है ना उसमें दो दी है। नहीं, इसमें तो सिर्फ एक ही है। ओके, सौम्य वीडियो हो गया। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कुछ लिखवाया था। नो मैम। हाँ, मैं लिखवाया था ना वो हेट्रोट्रॉप वाला पैरासिट, वो लिखवाया था ना। यस। यस सुहानी। मैम, फिलिंग द ब्लैंक्स कर दे हाँ कर दो। टेक्स्ट बुक में जो है। हाँ हाँ हाँ, सुहानी आपको तो ओके। ऐसे डिफाइन भी होंगे ना। हाँ, है ना। हाँ, धैर्य एंड सौम्य आप करो, कोई डाउट है तो मुझे पूछ लो। सौम्य एनी डाउट? धैर्य कौन से पेज पे पहुंचे? मैम मैंने पढ़ लिया। पूरा पढ़ लिया? मैम मैंने सब देख भी लिया।
सौम्या you मैम इसे क्या कहते हैं? इसको तो लीड कहते हैं। इस पेज नंबर 5 ये वाला यस मैम, इसे क्या कहते हैं? जग लाइक उसका शेप है, ये उसकी लीड है। मैम ये होल है मैम इधर। हाँ ये देखो, जैसे ये जग है, ये उसकी ओपनिंग है, और अंदर जब इंसेक्ट बीच में बैठता है तो जैसे हम जग में पानी नहीं डालते उस तरह से धीरे धीरे वो इंसेक्ट अंदर ट्रैप हो जाता है। ओके, सी उसका ओरिजिनल पिक्चर। धैर्य यस मैम। दिखा। यस यस मैम। मैम। ओके मैम, अभी डाउट नहीं है। पोटैटो ना गाइस। हाँ सौम्या, what are you doing? फिर मैं आज ग्रुप में वर्कशीट भेजवा दूंगी, आप लोग नेक्स्ट लेक्चर तक वो वर्कशीट कंप्लीट कर देना ट्यूशन बुक में, आज की डेट डाल के। मैम मैं ग्रुप में हूँ ही नहीं। मैडम मैम मैं ग्रुप लाउडली बोलो, थोड़ा धैर्य, सुनाई नहीं देता आपकी आवाज। मैम मैं ग्रुप में नहीं हूँ। हाँ तो ऐड हो जाना। यस मैम। धैर्य, आपने सब पढ़ लिया तो टेक्सचुअल एक्सरसाइज कर लो। चलो ट्यूशन बुक में लिखो टेक्सचुअल एक्सरसाइज क्वेश्चन 6, 7, 8 और 9 एंड 10। जो ऑब्जेक्टिव पार्ट्स है ना वो लिखो। चलो ऑब्जेक्टिव पार्ट्स लिखो और उसके आंसर्स लिखना। जैसे कि देखो फिल इन द ब्लैंक्स है, नेम द फॉलोइंग है, सबके आंसर्स लिख दो। मैम वो आंसर लिखे हुए ही है। अच्छा ऐसा, हाँ तो कॉपी करो क्वेश्चन फिर आंसर लिखना। यस, वहां पहुंचे सौम्या? यस मैम। मैम then ये you लिखना है। क्वेश्चंस लिख दो फिर आंसर लिखो बुक बंद करके। यस सुहानी? मैम ये लिखना है। पेज 9 नंबर में क्वेश्चन 6 से स्टार्ट करो। पेज नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 6। मैम एमसीक्यू में जो सेकंड नंबर है उसका आंसर क्या आएगा? कौन पूछ रहा है? सुहानी आप? मैं सुहानी। हाँ हमारी टेक्स्ट बुक में, ये वाली टेक्स्ट बुक में, वेट, पेज नंबर
सेकेंड, ये प्लांट्स obtain कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर थ्रू दिस स्ट्रक्चर, ये वाला सुहानी क्वेश्चन कौन सा है बेटा? मैम सेकंड नंबर का MCQs में which of these increase the surface area to absorb water and minerals through the roots? मेरे में एक्चुअली ये वाला क्वेश्चन नहीं है। क्या है ऑप्शन आपके? Rootlets, secondary roots, root hair, primary root. तो क्या आएगा? रूट है आंसर आएगा इसका। प्राइमरी रूट्स लग रहा है। रूट है क्योंकि रूट है जो है वो सरफेस एरिया इंक्रीज करने में हेल्प करता है और वो टिप्स ऑफ द रूट्स पे ज्यादातर पाए जाते हैं। ओके, Okay. सो रूट है इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द रूट्स एंड आर फाउंड ऑन द टिप ऑफ द रूट्स। Okay. आंसर विल बी रूट है। area where you have lost? मैम फिल इन द Yes, ब्लैंक्स में फर्स्ट वन का आंसर ऑटो ड्रॉप है। हाँ, मैम पहले yes, मैम सबके क्वेश्चंस लिखो सौम्य और धैर्य। यस मैम। पहले सबके क्वेश्चंस लिखो फिर बुक बंद करके आंसर। हाँ मैम। सौम्य, show me that you are writing. थोड़ा नजदीक लाओ मुझे दिखे। ओके, धैर्य, show me that you are writing. Yes, मैम। सुहानी, ओके। मैम मैंने फिल इन द ब्लैंक्स की क्वेश्चन लिख दिया। जोर से बोलो। क्या मैम? Say loudly. मैम मैंने फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन लिख दिए। Okay. Now write name the following. यस मैम।
मैम शॉर्ट आंसर्स लिखना है। हाँ, वेरी शॉर्ट हो वो लिख दो, नहीं आए तो मुझे पूछ लो। मैम पर वो तो टेक्स्ट बुक में से ही ढूंढने होंगे ना। मतलब आंसर इन वन लाइन नहीं है वो, आंसर इन वन लाइन है कि क्या है? शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। दिखाओ मुझे, शो मी। हाँ तो वो मत लिखो। मैम तो बाकी सब तो हो गया। डिफाइन लिख लो ट्यूशन बुक में। ओके। धैर्य सौम्य, आपका आपके दोनों के वीडियो क्यों ऑफ है? मैम वो मैं व्हाट्सएप में जाता हूँ और पीडीएफ ओपन करता हूँ ना, तो तब मेरा वीडियो ऑफ ही हो जाता है। ओके, और सौम्य आप क्यों ऑफ रखते हो? मैम अब नहीं रखूंगा था मैंने। Suhani, tell me your this define. How many define you have in your textbook? 9। एक बार सबके नाम बता दो। फूड न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक प्लांट्स, सैप्रोपेटिक प्लांट्स एंड सिम्बायोटिक प्लांट्स। ओके, Soumya, where you have reached till which question you have written? बोलो, मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 7 ना? ओके, नेम द फॉलोइंग। सौम्या, आपकी स्कूल स्टार्ट हो गई बेटा? यस मैम, हो गई From शुरू। where? From today it started? यस मैम। Then what is done in science? मैम साइंस में तो अभी नहीं चला, साइंस का पीरियड नहीं था मैम। Okay, and Daria, what about your school beta? Daria, what about your school?
धैर्य, Daria, are you there? Answer me. Daria, हो तो जवाब दो. मैम उसका नेट गया लगता है, कभी दिखता है कभी नहीं दिखता है। हाँ, उसको नेटवर्क इश्यू है, वो बोल रहा था ना. मैम अब आ गया। Daria, मैम your school started? हेलो मैम No. हेलो मैम Okay. On which question you have reached, Daria? कौन से क्वेश्चन पे पहुंचे? मैम मैं क्वेश्चन 8 में पहुंचा। Okay, that is the correct answer, right? यस मैम मैम मेरा Okay. मैम मेरा क्वेश्चन 8 भी द राइट आंसर कंप्लीट हो गया। Okay. And question 9 में you directly write right answer. Match the column if you are writing column 1 and column B के opposite column 1 के right answer ही लिखना. यस Okay? मैम यस मैम मैम मतलब हमको पूरा सेंटेंस नहीं लिखना है। ना. आंसर ऑक्सीजन आ रहा है, मतलब गलत आंसर कार्बन डाइऑक्साइड है और रियल आंसर ऑक्सीजन आ रहा है तो ऑक्सीजन लिखें। Yes. I am True talking false. about question 9. That is match the following I am talking about. ओके ओके। Okay? फर्स्ट का लीव, सेकंड का बस, थर्ड का Daria will. Yeah. मैम सुहानी भी लीव हो गई। हाँ. Next lecture तक question 10 भी लिख के रखना. Okay? ओके Okay, though. I am ending this lecture. Okay? Bye. बाय।